This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Sarfraz, and today we are going to discuss chapter number 7 from grade 2. The title of the lesson is Sports and Games. It's our second lecture on this lesson, which is based on exercise of this lesson and packed with fun and knowledge. In this lesson, we will explore 3 amazing topics that will help you to speak, write, and think more clearly. First, we will learn about action words, the magic words that bring sentences to life by showing actions like running, jumping, or even thinking. Next, we will discuss homophones, those tricky word pairs that sound the same but mean completely different things. After that, we will zoom into the world of sports and games, discovering how they keep us active, teach teamwork, and make learning joyful. By the end of this lesson, you will be able to spot verbs easily, use homophones correctly, and even share why your favorite sport is special. So grab your notebooks, put on your thinking caps, and let's begin this adventure together. Honorable teachers, as you know that in the first lecture of sports and games, we discussed Urdu translation of the text, meanings of difficult words, MCQs for assessment, and true-false statements. Now in this second lecture, we will explore the exercise of this lesson and we will discuss action words, homophones. After that, we will fill a mind map on the topic sports and what I learned from playing. Let's start with action words. First of all, we will discuss that what are action words. What are action words? Action words are also called verbs. जिस तरह हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा कि नाउन को नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है, एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सिमिलरली एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब्स को कहा जाता है. वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स टेल व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. एक्शन वर्ड्स किसी भी एक्शन के बारे में हमें बताते हैं. एंड एक्शन वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एक्शन वर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वी कैन फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट वर्ब्स. एक्शन वर्ड्स टेल व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. एक्शन वर्ड्स
हमें बताते हैं कि कोई भी इंसान, जानवर या कोई चीज़ क्या करती है। It tells us about their actions. For example, I am speaking, you are listening, and they are playing. मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। दैट आई एम स्पीकिंग, अब इसमें मेरा एक्शन क्या है? दैट आई एम स्पीकिंग। व्हाट आई एम डूइंग? आई एम स्पीकिंग। व्हाट यू पीपल आर डूइंग? यू आर लिसनिंग। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर प्लेइंग। सो स्पीकिंग, लिसनिंग एंड प्लेइंग, ये तीनों हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं जो कि मेरा, आपका और उन लोगों के एक्शन के बारे में हमें बता रहे हैं कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। एक्शन वर्ड्स को मज़ीद समझाने के लिए आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो अपने पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। देयर पॉसिबल आंसर्स कुड बी वी प्ले, वी रन, वी ईट एंड वी स्टडी। वो आपको बताएंगे कि वो खेलते भी हैं दिन में, वो खाना भी खाते हैं, वो स्टडी भी करते हैं, वो दौड़ते भी हैं, वो लिखते भी हैं। तो उनका खाना खाना, लिखना, खेलना और स्टडी करना, ये तमाम एक्शंस हैं। सो दीज आर एक्शन वर्ड्स जो हमें किसी के भी एक्शन के बारे में बताते हैं। For example, we have some other examples as well. Run is an action word. Eat, play, think, jump, sleep. ये तमाम हमारे पास action words हैं। Now we will discuss that what is the purpose of action words. ये जो action words हैं इनका पर्पस क्या है, इनको क्यों यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ड्स टेल व्हाट समवन इज डूइंग। एक्शन वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है। सेकंड वन इज एक्शन वर्ड्स टेल अस दैट what a person, animal or thing does. Action words are also used to make sentences complete. ये sentences को complete बनाने के लिए भी यूज होते हैं। Action words help to describe actions in stories and daily life. ये जो action words होते हैं ये स्टोरीज में और हमारी डेली लाइफ में जो एक्शंस होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ इनके पर्पस क्या है। दे टेल व्हाट समवन इज डूइंग, दे आर यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस कंप्लीट, हेल्पिंग वर्ड्स हेल्प टू डिस्क्राइब एक्शंस इन स्टोरीज एंड डेली लाइफ। Now we will discuss types of action words. Action word की कौन कौन सी types हैं? The first one is physical actions. What are physical actions? Physical actions can be seen or touched. Physical action से मुराद ये ऐसे actions हैं जिनमें हम physically involve होते हैं। For example, I am eating, तो मैं इसमें फिजिकली इन्वॉल्व हूँ। द बेबी क्लैप्स हर हैंड, इसमें बेबी जो है वो फिजिकली अपने हैंड्स की मदद से क्लैपिंग कर रहा है। तो जो फिजिकल एक्शंस होते हैं इनमें हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली हम इनको परफॉर्म करते हैं। सो फिजिकल एक्शंस कैन बी सीन और टच्ड। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी क्लैप्स हर हैंड्स। सेकेंड इसकी जो टाइप है दैट इज मेंटल एक्शंस। व्हाट आर मेंटल एक्शंस?
ये ऐसे एक्शंस होते हैं दोज हैपन इनसाइड द माइंड, जो हमारे जहन में परफॉर्म होते हैं, हमारे माइंड में परफॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल थिंक, नाउ, बिलीव, लव. फिर रिपीट करता हूं एग्जाम्पल्स. थिंक, नाउ, थिंक, नो, बिलीव, लव. ये ऐसे एक्शंस हैं जो कि हमारे माइंड में परफॉर्म हो रहे हैं और हम फिजिकली इनमें इन्वॉल्व नजर नहीं आते. सेंटेंस लाइक आई थिंक दिस इज अ गुड बुक. इसमें जो थिंक है ये मेंटल एक्शन है जिसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व है. आई बिलीव ही इज राइट. इसमें जो बिलीव है ये भी एक मेंटल एक्शन है. द थर्ड टाइप ऑफ एक्शन वर्ब इज being verbs. These actions shows state or condition. These actions show state or condition. ये जो actions होते हैं ये किसी भी state या condition को show करते हैं. For example, is, am, are, was, were. Example sentences: she is happy. She is happy. Now we have some examples in sentences. Here we will discuss the structure of sentences as well. जिनमें हम एक्शन वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेंटेंस है द बॉय किक्स द बॉल. तो अगर स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है द बॉय. आफ्टर द सब्जेक्ट वी आर यूजिंग एक्शन वर्ड किक्स. एट द एंड वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट द बॉल. द बॉय kicks the ball. Second sentence is she reads a book every day. She is subject here. Reads is an action word. A book is a object. Is an object. तो she हमारे पास सब्जेक्ट है. एक्शन वर्ड शी के बाद यूज हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम एक्शन वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. शी रीड्स अ बुक. थर्ड सेंटेंस इज दे प्ले फुटबॉल. हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, एक्शन वर्ड जो है हमारे पास प्ले है, ऑब्जेक्ट हमारे पास फुटबॉल है. तो दे प्ले फुटबॉल. ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट जो है वो यूज किया गया है. नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ टू आइडेंटिफाई एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस. कि हम किसी भी सेंटेंस में एक्शन वर्ड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लुक फॉर द वर्ड that tells what is happening. मतलब हमें सेंटेंस में उस वर्ड को ढूंढना है जो हमें ये बता रहा हो कि what is happening, क्या हो रहा है. Ask yourself what is the person, animal, thing doing. आपने देखना है या आप अपने आप से पूछें कि कोई भी शख्स, जानवर या चीज क्या कर रहा है. जो भी काम वो परफॉर्म कर रहे होंगे वो एक्शन वर्ड होंगे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सेंटेंस द कैट स्लीप्स ऑन द बेड. व्हाट इज द कैट डूइंग. कैट क्या कर रही है. द कैट स्लीप्स ऑन द बेड. इसमें एक्शन क्या है, एक्शन वर्ड स्लीप्स. That's the action word.
आप इसी किस्म के क्वेश्चंस बच्चों से क्लास में भी कर सकते हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, वो कहेगा आई एम राइटिंग। तो इसका जो राइटिंग है इज एन एक्शन वर्ड। अब बच्चे से क्या पूछ सकते हैं व्हाट आई एम डूइंग, वो कहेगा सर यू आर स्पीकिंग। तो ये मेरा जो स्पीकिंग है इट्स एन एक्शन वर्ड। तो आप क्लास में, क्लासरूम से और अपने स्कूल में से एक्शन वर्ड्स की एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नाउ वी हैव सम एक्टिविटीज टू फॉलो अप एक्शन वर्ड्स। फर्स्ट वन इज सर्कल द एक्शन वर्ड। कुछ सेंटेंसेस हैं, आपने उनमें से एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है। फर्स्ट वन इज द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। अब इसमें हमने देखना है डॉग कर क्या रहा है, बार्क्स। तो इसमें जो बार्क्स है ये हमारा एक्शन वर्ड है। दूसरा सेंटेंस है शी पेंट्स अ पिक्चर। व्हाट शी इज डूइंग, शी पेंट्स अ पिक्चर। इसमें जो पेंट्स है ये हमारा एक्शन वर्ड है। आई ईट एप्पल्स। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ईटिंग एप्पल्स, आई ईट एप्पल्स। तो यहाँ पे मेरा काम क्या है, ईट। सो ईट इज एन एक्शन वर्ड। You can ask your students to perform some actions in front of class and other students will guess what a student is doing. आप क्लास में से वन बाय वन बच्चों को क्लास के सामने बुला के कह सकते हैं कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करें और बाकी लोग जो हैं वो उसको गैस करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बोर्ड पे लिखना शुरू कर देता है तो वो कहेंगे ही इज़ राइटिंग। तो राइटिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्शन वर्ड। कोई स्विमिंग करके दिखा देगा ऐसे ही जेस्चर्स की मदद से, तो बच्चे गैस कर लेंगे। फिर इसी तरह कोई बच्चा जंप करना शुरू कर दे क्लास के आगे आगे सामने आकर, तो बाकी बच्चे गैस करेंगे दैट व्हाट ही इज डूइंग। तो जो भी वो काम परफॉर्म कर रहे होंगे वो तमाम उनके एक्शन वर्ड्स होंगे। नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सेंटेंस ही blank space a song, he sings a song। यहाँ पे हम sings लगा देंगे। we blank space to school, we go to school। स्कूल जाना भी एक एक्शन है, एक्शन वर्ड है। नाउ वी हैव वर्कशीट सैंपल। चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड। हर सेंटेंस के अगेंस्ट दो ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल ब्लैंक स्पेस अ लेटर। ऑप्शंस क्या हैं, राइट्स, ऑप्शन बी इज स्लीप्स। तो इसमें जो ऑप्शन ए है राइट्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। द गर्ल राइट्स अ लेटर। बर्ड्स ब्लैंक स्पेस इन द स्काई, फ्लाई, कुक। दो ऑप्शन है तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। थर्ड सेंटेंस इज ही ब्लैंक स्पेस लाउडली। हमारे पास दो ऑप्शन है, शाउट्स, पेंट्स। द राइट ऑप्शन इज शाउट्स। ही शाउट्स लाउडली। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें एक्शन वर्ड्स यूज किए गए हैं, हमने उनको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन इज द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। इसमें जो प्ले है वो एक्शन वर्ड है। आई ड्रिंक वाटर। मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रिंक। तो इसमें जो ड्रिंक है वो एक्शन वर्ड है, हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। शी जंप्स ओवर द रोप। व्हाट शी इज डूइंग, शी जंप्स।
तो इसमें जो जंप्स है ये हमारे पास एक्शन वर्ड है, हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। देन वी हैव ओरल क्विज। यू कैन आस्क योर स्टूडेंट टू नेम 5 एक्शन वर्ड्स। उनके जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, दे कैन राइट जंप, स्विम, प्ले, क्राई, ड्रिंक। ये पांचों हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं, जंप, स्विम, प्ले, क्राई, ड्रिंक। यू कैन असाइन देम राइटिंग टास्क। आप उन्हें कह सकते हैं राइट 3 sentences यूजिंग डिफरेंट एक्शन वर्ड्स। के जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो हो सकते हैं लाइक अहमद राइट्स अ लेटर, शी रन्स फास्ट इन द स्कूल रेस, दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। इन तीनों में राइट्स, रन्स और प्ले हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। Now we will discuss the second topic of this lecture, and that is homophones. What is the definition of homophones? Homophones are basically words that sound the same but different meaning and often different spellings. Homophones ऐसे words होते हैं जिनकी sounds तो एक जैसी होती है बट उनके जो स्पेलिंग्स होते हैं और उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम वर्ड होमोफोन को देखें तो इसमें जो होमोफोन है इट मीन्स सेम एंड फोन्स आर साउंड्स। तो इसके अगर कंप्लीट मीनिंग्स देख लें हम तो होमोफोन्स का मतलब है ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है बट उनके जो स्पेलिंग और मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछते हैं दैट व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ सन, आप ये लिखते नहीं हैं वैसे ही पूछ लेते हैं व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ सन, तो जब तक उसको स्पेलिंग्स क्लियर नहीं हो जाएंगे, साउंड तो SON की भी वही है और SUN की भी वही है, तो जब तक बच्चे को स्पेलिंग्स क्लियर नहीं हो जाएंगे वो आपको इसके एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं बता सकेगा। सो नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोफोन्स। हमारे पास कुछ फीचर्स हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन हमने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउंसिएशन, जो व्हाट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ होमोफोन्स, सेम और नियरली सेम, जब बिल्कुल ही मिलती जुलती होती है या फिर थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है। देन वी हैव स्पेलिंग्स, यूजली इनके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। व्हाट अबाउट द मीनिंग्स ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। यूजेज इन कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइंड बाय ग्रामर एंड सेंटेंस मीनिंग। व्हाई आर होमोफोन्स इम्पोर्टेंट टू लर्न? होमोफोन्स की इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली होमोफोन्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव स्पेलिंग एंड विकेबलरी। होमोफोन्स हमारे स्पेलिंग्स को और हमारी विकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। होमोफोन्स अवॉइड कॉमन ग्रामर मिस्टेक। होमोफोन्स की वजह से हम हमारी जो कॉमन ग्रामर की मिस्टेक्स हैं हम उनसे बच जाते हैं। होमोफोन्स इनहैंस लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्लैरिटी। homophones build confidence in reading comprehension. Homophones strengthen our writing skills. homophones हमारी writing skills को भी मजबूत करते हैं, बेहतर बनाते हैं. So what are the different categories of homophones? First one is exact homophones. What are exact homophones? These are the words that sound the same and have completely different meanings. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड तो आपस में मैच हो रही होती है, मिलती है साउंड इनकी, बट उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल, सेल SALE सेल किसी चीज़ का बेचना, और SAIL सेल तैरना. प्लेन PLAIN प्लेन और PLANE प्लेन
ये दोनों की साउंड जो है वो मैच हो रही हैं, बट इनके जो मीनिंग्स हैं और जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। द सेकेंड वन इज near homophones. What are near homophones? Words that sound almost the same with a slight difference. इनमें साउंड में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस होता है। रीजनल वेरिएशन में इन्फ्लुएंस दिस, और जो रीजनल बेसिस पे वेरिएशंस होती हैं वो उनका भी इन पर असर होता है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एडवाइस, एडवाइस, these are near homophones. Third one is homophones in a set. कुछ ऐसे homophones भी होते हैं जो एक सेट की सूरत में या एक ग्रुप की सूरत में होते हैं। Some homophones come in groups of 3 or more. कुछ ऐसे homophones होते हैं जो 3 या उससे ज़्यादा के ग्रुप्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल TO2, TOO2 एंड TWO2, इन तीनों की अगर आप साउंड देखें तो बिल्कुल सेम है, बट इनकी जो स्पेलिंग्स और जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन 1 एंड होमोफोन 2। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड है हमारे पास 8, सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट और दूसरा है 8, जिसको कि हम 8 बोलते हैं नंबर। बेयर, BARE बेयर और BEAR बेयर, बेयर अनकवर्ड चीज को कहते हैं और बेयर इज एन एनिमल, ये एक एनिमल भी है। उसके बाद सेल, CELL और SELL, सेल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल टू ट्रेड और एक्सचेंज फॉर मनी। DEAR डेयर, beloved, DEER dear, animal। SUN sun, SON sun, SUN sun सूरज और SON sun बेटा। right, RIGHT right, correct, write, WRTE write, to form letters लिखना। homophones in sentences, I ate 8 slices of peas, यहाँ पे 8 और 8 दोनों homophones हैं। The knight rode into the night, KNIGHT और NIGHT, ये दोनों हमारे पास homophones हैं। Please write your name on the right side of the paper, write, WRITE write and RIGHT write। The sun was shining as her son played in the park, SUN or SON, both are homophones। Here are some tips for teaching homophones। homophones को पढ़ाने के लिए हम कुछ टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल visual aids, use pictures for each homophones, हम homophones की जो हैं पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह SON सन है और SUN सन है। इन दोनों वर्ड्स के साथ साथ अगर हम पिक्चर्स लगा देंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। सेंटेंस क्रिएशन, आस्क स्टूडेंट टू राइट बोथ वर्ड्स इन वन सेंटेंस, जिस तरह अभी हमने देखा कि प्लीज राइट योर नेम ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। इस किस्म के सेंटेंसेस हम बच्चों से लिखवा सकते हैं कि जिसमें दोनों वर्ड्स आ रहे हैं। स्टोरी टेलिंग, you can ask your students to write stories using at least 5 homophone pairs। बच्चों को कहानी लिखने को कहा जा सकता है जिसमें कि वो 5 होमोफोन के पेयर्स को यूज करें। होमोफोन चार्ट, आप होमोफोन का एक चार्ट बनाकर भी अपने क्लासरूम में लगा सकते हैं ताकि बच्चे डेली बेसिस पे उनको देखें और पढ़ें। नाउ वी हैव सम फिल इन द ब्लैंक्स। हर सेंटेंस के सामने 2 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें उनमें से सही आंसर को चूज करना है। फर्स्ट वन इज आई वांट टू ब्लैंक स्पेस, हेयर, HEAR और HERE, आई वांट टू हेयर, HEAR, आई वांट टू हेयर अ स्टोरी, यहाँ पे हेयर आएगा। माई मदर बेक्ड अ केक यूजिंग फ्लोर, FLOUR और FLOUR,
WER, तो यहाँ पे हम FLOUR यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस इज वी वेंट टू द सी, SEAC और SEEC टू स्विम, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है SEAC। He read a fairy tale last night, TAIL टेल और TALE टेल, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है TALE टेल। She wore a blue dress and a matching pair, PAIR of shoes, इसमें PAIR वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। Now at the end of this lecture we have a mind map we have to fill on the topic of sports and what I learned from playing. सेंटर में हमने स्पोर्ट्स को दिया है और उसमें से हमने इस माइंड मैप को फिल करना है। हमारे पास कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर करेंगे। द फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट। स्पोर्ट्स की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली स्पोर्ट्स आर फिजिकल एक्टिविटीज that involve skill, competition and enjoyment. स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जो कि स्किल, कंपटीशन और एंजॉयमेंट को इन्वॉल्व करती हैं। सो व्हाट आर आउटडोर स्पोर्ट्स विद एग्जाम्पल्स? इसी का दूसरा है व्हाट आर आउटडोर स्पोर्ट्स विद एग्जाम्पल्स। आउटडोर स्पोर्ट्स आर प्लेड आउटसाइड इन ओपन एरियाज। ऐसी गेम्स जो बाहर और एक ओपन इन्वायरमेंट में, एक ओपन एरिया में खेली जाती हैं उनको आउटडोर गेम्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी etc. So what are indoor games and examples? Indoor games are played inside buildings. ऐसी गेम्स जो घर के अंदर या किसी रूम में या किसी बिल्डिंग के अंदर खेली जा सकती हों उनको हम इंडोर गेम्स कहते हैं, लाइक टेबल टेनिस, चेस एंड बैडमिंटन, लूडो। व्हाट आर लोकल गेम्स एंड एग्जाम्पल्स? लोकल गेम्स आर ट्रेडिशनल गेम्स प्लेड इन स्पेसिफिक रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल कबड्डी, गिल्ली डंडा, पिट्ठू ग्राम। The next heading is my favorite game and reason. Favorite game? My favorite game is cricket. And what is the reason? It is exciting and teaches teamwork and discipline. इस माइंड मैप की जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की अहमियत क्या है? स्पोर्ट्स कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव, टीच discipline and teamwork, builds confidence, reduce stress and improve focus. Now we have completed our lecture. I hope कि आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।